हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 280। 280 क्या कहता है उसके बारे में, 280 आर्टिकल क्या कहता है उसके बारे में आज मैं पढ़ूंगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। 280 संविधान का अनुच्छेद 280 बताता है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग का गठन कैसे किया जाएगा या उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसके बारे में ये अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन की बात करता है। 280 280 आर्टिकल सेज अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के लिए द फाइनेंस कमीशन फॉर इंडिया, भारत के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो चलें स्टार्ट करें। 280 article says about the finance commission. Number 1, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or at such earlier any time, the president shall within 2 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of every 5th year or at such earlier time as the president considers necessary by order constitute a finance commission which shall consist of a chairman and 4 other members to be appointed by the president. Number 2, Parliament may by law. Number 2, Parliament may by law determine the qualifications which shall be requisite for appointment as members of the commission and the manner in which they shall be selected. क्या कहा जा रहा है? Number 2, Parliament may by law determine the qualifications which shall be requisite for appointment as members of the commission and the manner in which they shall be selected. Number 3, it shall be the duty of the commission to make recommendations to the president as to number A, the distribution between the union and the states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them under this chapter and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds. Number B, the principles which should govern and grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund of India. Number B यानी number BB, the measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats in the state on the basis of the recommendations made by the finance commission of the state. Number C, the measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the finance commission of the state. Number D, any other matter referred to the commission by the president in the interests of sound finance. Number 4, the commission shall determine the procedure and shall have such powers in the performance of their functions as Parliament may by law confer on them. अब मैं इसको पढ़ लेती हूँ हिंदी में, ठीक है।
अनुच्छेद 280 संविधान का अनुच्छेद 280 सॉरी संविधान का अनुच्छेद 280 बताता है वित्त आयोग के गठन के बारे में। इसके लिए क्या बताता है कि नंबर 1 राष्ट्रपति संविधान के इसके लिए क्या बताता है कि नंबर 1 में राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर तथा तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा वित्त आयोग। तो कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति का जो आदेश होगा और वित्त आयोग का गठन करेगा तथा साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो उसका जो अपॉइंटमेंट होगा उनमें से वो अपनी पसंद के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो जैसे कि इस समय क्या चल रहा है हमारे देश में, फाइनेंस कमीशन में, ये तो आप सब लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। चलिए अभी तो मैं बात कर रही हूँ कि वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, वित्त आयोग की स्थापना कैसे होगी। ये अनुच्छेद 280 बताता है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। नंबर 2 संसद विधि द्वारा उन अर्हताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिससे उनका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। इसके लिए संसद विधि के द्वारा जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी उस रीति से जिससे उसका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। नंबर 3 आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वे आयोग की ड्यूटीज क्या होंगी उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, उसके बारे में। नंबर का संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं। क्या करना है? संघ और राज्यों के बीच जो कर हैं उनके शुद्ध आगमों के जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं। वितरण के बारे में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में, राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के बारे में और जो राज्यों से जो प्राप्त आगमों के तत्संबंधी भाग हैं उनके आवंटन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नंबर खा भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता। दूसरा काम क्या है? इसका कर्तव्य होगा वित्त आयोग का। इस आयोग का क्या काम होगा? दूसरा नंबर खा भारत की संचित निधि जो भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, यानी उनके सिद्धांतों के बारे में जांच पड़ताल करना ताकि राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान देने के लिए पहले उनकी स्टडी करेगा ये आयोग कि क्या उन राज्यों को सहायता अनुदान दिया जा सकता है या नहीं, उनकी जो कमियां हैं उनको देखेगा ये आयोग कि इन राज्यों में क्या इनको सच में वित्त की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, इनको सहायता अनुदान देने की क्या सच में ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों का ये आयोग पहले अध्ययन करेगा। नंबर खा राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए
किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में। इसके साथ में खा जो है डबल खा जोड़ा गया है। इसमें बताया गया कि राज्य के जो वित्त आयोग की जो सिफारिशों के आधार पर राज्य के जो हर राज्यों के अपने अपने वित्त आयोग होते हैं, तो उनकी भी सिफारिशें होती हैं। उनके आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की, जो पंचायतों को दिए, जो पंचायतों के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उनकी अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में। राज्य की संचित निधि के संवर्धन, उनमें वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में। नंबर ग, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए। अब क्या है कि राज्य के जो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें, राज्य का जो वित्त आयोग है इतना तो अमीर होता नहीं है। राज्य से जो राज्य के जो अपने संसाधन हैं उन्हीं में से आयोग है, वित्त का कार्य संचालन करता है। इसके बाद फिर भी राज्य के जो वित्त आयोग हैं उनकी निर्भरता संघ के जो आयोग है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर निर्भरता बनी ही रहती है राज्यों के वित्त आयोगों की। वो समय समय पर सिफारिश करते हैं अनुदान लेने के लिए। तो ये बातें की जा रही हैं कि अनुच्छेद नंबर ग में कहा जा रहा है कि राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों की संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए, किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए, जैसे कि राज्यों की भी अपनी अलग अलग संचित निधियां होती हैं, उनके संवर्धन के लिए। नंबर का, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें, राज्य के वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें की जाती हैं, रिकमेंडेशंस की जाती, अनुशंसाएं की जाती हैं कि राज्य में जो नगर पालिकाएँ हैं उनके संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए समय समय पर राज्य के वित्त आयोग सिफारिशें करते हैं, ताकि नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति की जा सके, ताकि नगर पालिकाओं को और अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, क्योंकि वहाँ पे संसाधनों फंड की कमी रहती है। इसलिए विकास नगर पालिकाओं के अंदर अधूरा रहता है, क्योंकि उनकी निर्भरता राज्यों पर होती है, राज्यों की निर्भरता वित्त आयोग पे रहती है। तो ये सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर रहता है। तो इसी तरह राज्य हमेशा, राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं समय समय पर कभी कभी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार से हमें इतना दिया जाए, मुझे अपने राज्य में ये करना है, वो करना है। तो समय समय पर वित्त आयोग अनुशंसाएं राज्य के वित्त आयोगों के द्वारा सिफारिशें की जाती हैं अनुदान लेने के लिए, नगर पालिकाओं के विकास के लिए, किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक। जब राज्य की जो संचित निधि है उसमें धन कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो विकास कार्य हैं, उस राज्य के अंदर जो विकास कार्य हैं वो रुक जाते हैं, तो रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए, उनका कार्य संचालन करने के लिए भी ये राज्य के वित्त आयोगों की सिफारिशें भेजी जाती हैं केंद्र के, भारत सरकार के वित्त आयोग को। इसके अलावा नंबर घ, सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में। नंबर घ बताता है कि सुदृढ़ वित्त के हित में, यानी वित्त के हित में, जो सुदृढ़ यानी वित्त को मजबूत बनाना है। जब आपने देखा होगा, जब राजस्व, सरकार का राजस्व घटता है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, गरीबी आती है, भुखमरी, ये सब चीज़ें आती हैं। इसलिए वित्त आयोग को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए भी राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट
किया जाता है किसी अन्य विषय के बारे में। नंबर 4, आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी। क्या है? आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा, अपने कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे। क्या कहा जा रहा है कि आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा। जो वित्त आयोग है वो अपनी प्रक्रिया खुद अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के पालन में, अपने कार्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी, उसको मतलब ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएंगी जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे। तो ये कहा जा रहा है। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें और अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धन राशियों की अभिरक्षा के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेदों के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।